Assalamu alaikum students. Grade 9 Additional Mathematics 4037. In the previous video, we discussed how to find the perpendicular distance from a point and a line. In this video, we will be looking at how to find the perpendicular distance between two parallel lines. This is question number 11 of exercise 7.6, page number 163. In this question, we have two parts, part A and part B. Two parallel lines have been given to us. The first line is ax plus y minus 1 equals to 0. And the second line is 2x plus y plus 11 equals to 0. These are the two parallel lines which are given in the question. And in the first part, we have to find the value of a. Since these two lines are parallel, so we will be finding the slope first. Gradient पहले find out कर लेते हैं. And we know that how to find the gradient of a line when an equation is given. We just have to arrange them according to the slope intercept form. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अरेंज करने के लिए वी हैव टू मेक द y सब्जेक्ट. जब y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी हैव टू शिफ्ट दीज टू ऑन द अदर साइड्स. दिस इज पॉजिटिव ax, it will go on the other side and it will be minus ax, and this is negative 1, and when it will be shifted on the other side this will become plus 1. So y is equals to minus ax plus 1, and if we want to get the slope, we know that the slope is the coefficient of x and the coefficient 1 is equals to minus a. And again arranging this equation as well in the form of the slope intercept form, y is equals to mx plus c and y is equals to minus 2x minus 11, because both of these will be shifted on the other side, and the slope of this line is coming out to be minus 2 because the coefficient of x is minus 2. So since the lines are parallel, we know that the gradient will be equal. So by equating minus a and minus 2, the value of a is coming out to be 2. This was the first part in which we were asked to find the value of a. Our interest is in the second part, because second part में we have to find the perpendicular distance between these two parallel lines. जिस तरह हमने पहले वीडियो में perpendicular distance निकालना सीखा था, we have two methods. दो methods हमने डिस्कस किए थे उस वीडियो में भी. एक मेथड फॉर्मूला मेथड था जिसमें बहुत कम वर्किंग थी और बहुत कम टाइम में we are getting our answer. लेकिन जो दूसरा मेथड था that was more authentic, और that was कहते हैं ना सीआई वाले ज़्यादा उसको जो है वो प्रेफर करते हैं. वो थोड़ा सा लेंदी मेथड था, लेकिन उससे भी जो है वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ रहा था. वो मेथड ट्रेडिशनल मेथड था जिसमें हम इक्वेशंस बनाते थे और फिर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पॉइंट फाइंड आउट करते थे. तो फॉर्मूला मेथड है जिससे हमारा आंसर दोबारा बड़ी जल्दी आ जाएगा. और दूसरा मेथड वही इक्वेशन मेथड है जो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि किस तरह परपेंडिकुलर पैरेलल लाइंस के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट किया जाता है. So part B में हमें perpendicular distance find out करना between the two lines. So we have two methods. We are going with the first method. मैंने फिगर बना दी है. These are two हमारी parallel lines हैं. ये हमारी line 1 है, जैसा ऊपर हमने इसको मेंशन किया हुआ है. ये line 2 है हमारे पास. और मैं दोबारा तो है दोनों इक्वेशंस जो हैं वो नीचे कॉपी कर देता हूँ a की वैल्यू पुट करके. अब मेरे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो हो जाएगी 2x प्लस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0. और जो मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 2x प्लस y और प्लस 11 इक्वल्स टू 0. और मेरे पास जो फॉर्मूला है, द फॉर्मूला विच इज यूज्ड टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d is equals to absolute value c1 minus c2. c1 is the constant in both the equation. c1 minus c2 divided by square root of a square plus b square. a is the coefficient of x, b is the coefficient of y, and c is the constant. तो हमारे पास यहाँ a की वैल्यू 2 है. दिस इज द वैल्यू ऑफ a. यहाँ हमारे पास a और यहाँ हमारे पास b की वैल्यू जो है वो प्लस 1 है. और हमारे पास जो c की वैल्यू है दिस इज माइनस 1, तो मैं इसको c1 कह दूँ. और यहाँ अगेन a की वैल्यू हमारे पास 2 है बिकॉज दीज आर पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस में a और b की वैल्यू जो है वो सेम होती है. तो a और b की वैल्यू हमारे पास दोनों में सेम है, इसीलिए फॉर्मूले में एक ही बार यूज हुआ है. और वी हैव द वैल्यू ऑफ c अगेन, जो कि मैं c2 से लिख रहा हूँ, और c2 की वैल्यू जो है वो मेरे पास 11 है. So we have the values, we have all the values, just put them in the formula.
और एब्सोल्यूट वैल्यू का मैंने साइन बनाया। C1 की वैल्यू मेरे पास -1 है, तो मैंने C1 की जगह -1 लिखा। और C2 जो है वो 11 है, क्योंकि फॉर्मूले का माइनस है तो पहले मैं ये लिखूंगा, और C2 की वैल्यू 11 है तो मैंने 11 लिख दिया। एंड देन होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, मेरे पास ए की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर जो है वो 4 हो जाएगा, तो मैंने 4 लिख दिया है। और प्लस मेरे पास बी की वैल्यू जो है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही रहेगा। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू में -12 आ रहा है, क्योंकि -1 और -11 -12 और नीचे √5, क्योंकि 4 और 1 जो है वो √5 होता है। एंड नाउ आई विल जस्ट रिमूव दिस एब्सोल्यूट साइन, और मेरी पॉजिटिव वैल्यू जो है वो बाहर आ जाएगी। तो मेरे पास जो डिस्टेंस आ रहा है, फाइनल डिस्टेंस, दैट इज कमिंग आउट टू बी 12/√5। और इफ यू वांट टू राइट दिस इन डेसिमल, इसको आप रैशनलाइज भी कर सकते हो। अगर आप इसको रैशनलाइज करके लिखना चाहो तो आपको √5 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो दिस कैन बी और आंसर एज वेल 12√5/5, ये आपका बुक का आंसर है। और इफ यू वांट टू राइट इट इन डेसिमल्स, अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहो तो यू कैन आल्सो राइट इट इन डेसिमल, और डेसिमल में इसका आंसर आ जाएगा 5.37। अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूँ तो 5.37 यूनिट। तो दिस वाज द फॉर्मूला मेथड, जिससे बड़ी जल्दी और बड़ी कम वर्किंग के साथ जो है वो हमें आंसर मिल जाता है। अब हम लोग जरा लेंदी वाला मेथड पे डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमें इक्वेशंस बनानी है, जो कि सिमिलर है परपेंडिकुलर वाले मेथड से, लेकिन इसमें बस एक चीज़ नहीं है जो मुझे आपको सिखानी है। तो मैं फिगर दोबारा बना देता हूँ। हमें पता है कि हमारे पास जो है वो इक्वेशंस हैं, और हम लोग बिल्कुल उसी तरह इस मेथड को भी लेके चलते हैं कि मेरे पास एक पैरेलल लाइन L1 है और एक पैरेलल लाइन जो है वो L2 है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, और मुझे ये डी फाइंड आउट करना है। ठीक है, लास्ट टाइम जो मेरे पास वो थी फिगर, अगर मैं उसको भी बनाना चाहूँ तो उस वक्त मेरे पास एक पॉइंट था और मेरे पास एक लाइन थी, और मुझे इन दोनों के दरमियान जो है ना वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। ये जो मैंने प्रीवियस वीडियो में काम किया था। इस बार द ओनली थिंग विच इज चेंजेस, वी हैव 2 लाइंस। इस लाइन की जगह, इस पॉइंट की जगह पे मेरे पास अब एक पूरी लाइन मौजूद है। ठीक है, अब नीचे वाली लाइन तो कांस्टेंट है, वहां भी थी नीचे वाली लाइन, और नीचे वाली लाइन यहाँ भी है। तो बस एक चीज वो डिफरेंस हो गई है कि ऊपर पॉइंट था, अब यहाँ लाइन है। तो इसका मतलब है कि मुझे ऊपर पॉइंट चाहिए। अगर मुझे ऊपर पॉइंट मिल जाए तो मैं इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन बना सकता हूँ, और फिर मैं उसी तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया था, क्योंकि इसकी इक्वेशन तो है मेरे पास। अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ इक्वेशन भी लिख देता हूँ। ऊपर वाली लाइन की जो इक्वेशन है उसको मैं इस तरह लिख देता हूँ, 2x + y -1 = 0। ये मैं ऊपर वाली इक्वेशन लिख देता हूँ लाइन की, हमारे पास ऊपर वाली लाइन की इक्वेशन है। और नीचे वाली जो मेरे पास लाइन है उसकी इक्वेशन मैं लिखूंगा 2x + y एंड +11 = 0। तो मेरे पास दो इक्वेशंस हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में मेरे पास एक इक्वेशन और एक पॉइंट होता था। तो अब मुझे जो है वो किसी तरह ऊपर एक पॉइंट चाहिए। अगर मुझे ऊपर एक पॉइंट मिल जाए तो मैं पूरा वाला प्रीवियस मेथड रिपीट करके डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ। और मेरे पास ऊपर इक्वेशन है, और मैं इक्वेशन से जो है वो पॉइंट बिल्कुल बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये आपके लिए नई चीज़ है। किस तरह? आई हैव दिस इक्वेशन, मेरे पास ये इक्वेशन है 2x + y -1 = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। अगर मैं यहाँ x की कोई भी वैल्यू सपोज करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ तो इसका मतलब है कि आई कैन गेट 1 पॉइंट ऑन दिस लाइन। इसी तरह पॉइंट मिलता है ना। चलो फॉर एग्जांपल मैं x की वैल्यू 1 सपोज करता हूँ, मैं x की वैल्यू 1 सपोज करता हूँ अपनी मर्जी से, और मैं x की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट करता हूँ, तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं ब्रैकेट में x की जगह पर मैंने 1 लिखा, और फिर मैंने यहाँ +y लिखा, और फिर मैंने -1 = 0 लिखा। अब मुझे y की वैल्यू चाहिए तो मुझे सब कुछ शिफ्ट करना पड़ेगा। y को मैंने इधर ही रहने दिया, और ये जो -1 था वहां जाके +1 हो जाएगा, और ये 2 × 2 1 और 2 × 2 2 हो जाएगा, और ये 2 को जब मैं शिफ्ट करूंगा तो ये -2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी -1। तो मैंने जो है देखो x की वैल्यू सपोज करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस तरह मुझे एक पॉइंट मिल गया इस लाइन पे, दैट इज 1 और -1। 1 और -1 पॉइंट है जो कि इस लाइन पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो मैंने पॉइंट फाइंड आउट किया है वो ये रहा, 1 और -1।
और अब जो है मैं बिल्कुल वही, मेरे पास क्वेश्चन आ गया कि मेरे पास एक पॉइंट है और मेरे पास एक लाइन है और मुझे इन दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये बिल्कुल वही वाला मेथड मैं दोबारा अप्लाई करने वाला हूँ। बस मैंने थोड़ा सा डिफरेंट काम ये किया कि जस्ट एक पॉइंट मैंने जो है वो इस लाइन से एक्सट्रैक्ट कर लिया बाय अज्यूमिंग एनी वैल्यू ऑफ एक्स। मैंने एक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकता था, मैंने 1 लेके वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस तरह मुझे ये पॉइंट मिल गया। अब मेरे पास पॉइंट भी है, तो इसका मतलब है कि आई कैन मेक द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। मैं इस लाइन की इक्वेशन बना सकता हूँ क्योंकि इससे ग्रेडियंट निकालूंगा पहले। तो वही काम मैंने दोबारा स्टार्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग फॉर ग्रेडियंट। मैं इस लाइन से ग्रेडियंट फाइंड आउट करता हूँ। तो ग्रेडियंट फाइंड दिस इज द सेकंड मेथड, मैं यहाँ लिख देता हूँ। और जब मैं इसको अरेंज करूंगा तो मेरे पास जो है वो इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी कि y इज इक्वल्स टू, और -2x हो जाएगा उधर, और -2x हो जाएगा, और ये जो 11 है ये जमा जाके ये भी -11 हो जाएगा। तो मेरे पास ग्रेडियंट जो है वो इस लाइन की आ जाएगी -2, और चूंकि ये लाइन उस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ लाइंस आर परपेंडिकुलर। हमें पता है कि इसका ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। तो मैं इसको पहले रेसिप्रोकल कर लूँ। जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूँगा मतलब इसके नीचे डिनोमिनेटर में इस वक्त 1 है, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो ये 1/2 हो जाएगा, और जब इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब है कि मुझे जिस लाइन की इक्वेशन बनानी है उसकी ग्रेडियंट जो है वो 1/2 आ रही है, और मेरे पास एक पॉइंट भी है जो कि मैंने अभी रिसेंटली फाइंड आउट किया था, 1 और -1। So I can use these two equations, these two information to get the value of equation. Equation find out करने के लिए मेरे पास वही कार्टेशियन इक्वेशन y minus y1 और इज इक्वल्स टू mx minus x1, यही जो फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ, दिस इज कॉल्ड द कार्टेशियन इक्वेशन, एंड आई जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज नाउ। सिर्फ वैल्यूज मुझे पुट करनी है। दिस इज माय x1, ये मेरा x1 हो गया, एंड दिस इज माय y1, ये y1 हो गया, और y माइनस y1 नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m, मेरे पास हाफ है तो मैं हाफ यूज़ करूँगा, और x माइनस x1, x की जगह पे x और -1 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दिस विल बी 2y प्लस 2 इक्वल्स टू x माइनस 1, और अगर मैं 2 को वहाँ शिफ्ट कर दूँ तो 2y इज इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव 2 है वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा तो ये x माइनस 3 हो जाएगा। तो दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, ठीक है। आई हैव द टू इक्वेशंस नाउ। अब मैं दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वो पॉइंट फाइंड आउट करूंगा, एंड देन आई विल फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में किया था। मैं अपनी दोनों इक्वेशंस को दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ। अच्छा, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, और यहाँ से ये हो जाएगी 2y इज इक्वल्स टू x माइनस 3। ये परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन है जो मैंने फाइंड आउट की है, और जो दूसरी लाइन है मेरे पास वो है 2x प्लस 11 प्लस y प्लस 11 इक्वल टू 0। तो दो इक्वेशंस मेरे पास हैं। अब मुझे इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है टू गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट। और अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करूं, अगेन आई एम गोइंग फॉर द सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो यहाँ से मेरे पास जो y की वैल्यू आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ y विल बी x माइनस 3/2, और वो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। ये 2x ऐसे ही रहेगा, और प्लस मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ y की जो मैंने फाइंड आउट की है, x माइनस 3/2, और फिर ये प्लस 11 जो है इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ दूसरी साइड पे, तो ये -11 हो जाएगा। और अब मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा बिकॉज यहाँ 1 है और 2 एलसीएम आ जाएगा। वो 1 और 2 का एलसीएम इज 2, सो ये 2 है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड आई हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय 2 एज वेल। 2 मल्टीप्लाई बाय 2x विल बी 4x, एंड 4x प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू -11। इस -11, ये जो 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है इसको शिफ्ट कर देता हूँ दूसरी साइड पे, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 4 और 1 5x हो जाएगा। दिस इज 5x, और इक्वल्स टू
ये मैंने 2 को पहले यहाँ शिफ्ट किया तो ये -22 हो गया, और ये जो माइनस का 3 है ये जब उधर चले जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। ये -22 हो गया, एंड देन दिस -3 विल गो ऑन द अदर साइड एंड इट विल बी +3। तो मेरे पास जो x की वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी -22 और +13 मेरे पास हो जाएगा -19, और ये 5 जाके वहां डिवाइड हो जाएगा, तो दिस विल बी -19/5। अब ये x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ और y की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, इसको डेसिमल में कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। -19 डिवाइडेड बाय 5 मेरे पास जो है वो -3.8 आ रही है, तो मैं डेसिमल वैल्यू यूज कर लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है। और दिस इज, मैं यही दूसरी y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। y विल बी इक्वल्स टू, x की जगह पे मैंने -3.8 पुट कर दिया जो x की वैल्यू थी, and then this is -3 again divided by 2, or the value of y is equals to -3.4। तो मेरे पास x की भी वैल्यू आ गई है, मेरे पास y की भी वैल्यू आ गई है। द वैल्यू ऑफ x इज -3.8। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने पहले वाला मेथड किया था उसी तरह मैंने इसको भी फॉलो किया है। तो फर्स्ट थिंग इसमें नहीं थी हाउ टू गेट अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो वो मैंने आपको सिखा दिया किस तरह जो है वो आप x की वैल्यू सपोज करके y की वैल्यू निकाल सकते हो। नाउ दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने फाइंड आउट किया है 1 और -1। अब मुझे सिर्फ डिस्टेंस निकालना है इन दोनों के दरमियान, एंड आई विल गेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला मैं दोबारा यूज कर लेता हूँ, पहले मैं इनको लेबल कर दूँ। So this is x1 and this is y1, this is x2, this is y2। डिस्टेंस फॉर्मूले में डिस्टेंस यूज करना है, d is equals to square root y2 is -1 so y2, और minus y1 so this will be plus 3.4 and then whole square and then a positive sign, and then x2 minus x1, x2 is 1 और x2 माइनस देन अगेन प्लस हो जाएगा वो, और 3.8 और ये इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इट्स टाइम टू यूज सम कैलकुलेटर्स निकाल के अपने इसको यूज करो जल्दी से। और दिस इज 2.4, ये 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस होगा, माइनस साइन बिलोंग्स टू द ग्रेटर, दिस विल बी 2.4 स्क्वायर and this will be 4.8 square। टू पॉइंट फोर का स्क्वायर जो है वो 5.37, जैसा कि मेरा फर्स्ट मेथड से आंसर आया था बिल्कुल इससे भी वही एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 5.37 यूनिट। यू कैन ऑल्सो चेक इट फ्रॉम योर कैलकुलेटर। तो दिस इज द सेकंड मेथड जिसमें थोड़ी सी वर्किंग ज़्यादा है, लेकिन मेथड आसान सा है, उसी तरह परपेंडिकुलर वाले मेथड से मिलता जुलता है, बस द ओनली डिफरेंस इज दैट यू हैव टू गेट अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। पहले हमें एक पॉइंट जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है इस लाइन से, और वो हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाय अज्यूमिंग एनी वैल्यू ऑफ एक्स। आप कोई भी एक्स की वैल्यू अज्यूम करके वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, और उसके बाद हमारा पूरा प्रोसीजर वैसे ही था कि पहले हमने ग्रेडियंट निकाली, फिर उसको परपेंडिकुलर किया, नेगेटिव उसका रेसिप्रोकल लिया, इक्वेशन बनाई, इक्वेशन बनाने के बाद दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, वी गेट अ पॉइंट, और फिर इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकाल के वी फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम